चले बेटा, let's do question number 7. I am writing the question here. Question 7 says that calculate the weight, calculate the weight of a substance X which in gaseous form occupies 10 liters at 27 degrees Celsius and 700 mm pressure. Then the molecular weight of X is 60. Let's start the solution. This is the question. Now, the pattern that we are following in this chapter is two things are discussed in the question. Same two we bring from the formula. What four things are discussed in the question? First is what? Mole. Second is gram molecular weight, जो कि डिस्कस करेंगे आज अभी इसके बाद. ग्राम मोलिकुलर वेट क्या होता है? विल डिस्कस दैट. ग्राम मोलिकुलर वेट सबका अलग अलग होता है. नेक्स्ट इज वॉल्यूम, बट वॉल्यूम के साथ एक और प्रॉब्लम है. वॉल्यूम शुड बी एट एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये रूल है. एंड देन लास्ट इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स. तो इन चारों में से जो भी दो चीज डिस्कस होती है क्वेश्चन में वो देखते हैं. चलिए सोल्यूशन करते हैं. बोले कैलकुलेट द वेट, सो हमें निकालना है मास ऑफ substance at X, sorry, substance X, which in the gaseous form occupies, volume is given 10 liters. But this volume is at a temperature of 27 degrees Celsius. If I convert this into Kelvin, what will I write? 27 plus 273 Kelvin. Yes or no? So temperature is coming as 300. No, not 300. It will be what? 27 plus 273 is 290. 300 only. 300 Kelvin. Pressure is given as what? 700 mm of He. And this is wrong. We cannot relate this with the formula. फॉर्मूले की तरफ जा ही नहीं सकते हम, क्योंकि जो हमारा सब्सटेंस एक्स है ये एसटीपी पे नहीं है. अगर जो ये एसटीपी पे होता तो फिर हम जा सकते थे उधर. तो प्रॉब्लम यही आ गई. दिस वॉल्यूम इज रॉन्ग वॉल्यूम because this volume is given at what? Some other temperature and pressure. So let's convert this to STP, standard temperature and pressure. How will we do that? Volume 2 is question mark. Temperature 2 we know, 273 Kelvin. And pressure is 760 mm. We know the formula. Pressure, volume upon temperature is P2 V2 upon T2. So pressure is what? Pressure 1, 700 mm. I'm not writing the unit because all the units are same. 10 liters कट जाएगा. Temperature is how much beta? 300. Pressure 2 is 760 into volume 2 upon temperature 2 is 273. Take this up, take this down. So we'll have 700 into 10 into 273 upon is 300, and this 760 will also come down. Will be volume 2 or the actual volume. 0 0 0 0 cut. This 10 will cut this 0. 3 how much? 391. Multiply 7. 7 1 is 7. 7 9 is 63. Upon 76 is volume 2. So what will be volume 2? 637 upon 76. We can divide, no problem. 637 divided by 76. Let's do division. 7 how much is 63? Although 7 nines are 63, but it will not go by 9. Let's try 8 then. Division तो आता है सबको. 8 6 are 48. 7 8 are 50. 7 8 are 56. 57. Here है. 6 8 are 48. ठीक है. एक बार खुद भी करिए बेटा. 6 8 are 48.
7 8 is 56, so 60. 17 minus 8 is 9, 2. Put the decimal, 0. 7, how much is 29? 7 fours are, but it will go by 3. It will go by what? 3 से करते हैं. 3 6 are 18, 1 carry. 3 6 are 18. 3 7 are 21, 22. You know how to subtract. 10 minus 8 2 होता है. 7 minus 2 5 होता है. Point लगा है 0. Then again it's going by. Minus देखिए मैंने ठीक किया है. 520 होगा है 620. 620. इजी है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है. और फिर 8 आ जाएगा बेटा. सो वॉल्यूम 2 इज कमिंग एज 8.38 लीटर्स, जो कि करेक्ट वॉल्यूम है. दिस प्रीवियस वॉल्यूम वाज रॉन्ग. 10 लीटर वॉल्यूम जो दिया था वो गलत था. क्यों था बेटा वो गलत? क्योंकि वो एसटीपी पे नहीं था. और वॉल्यूम किस पे होना चाहिए? हमने पढ़ा है गैस की वॉल्यूम बदल सकती है, कितनी भी कर सकते हैं आप. टेम्परेचर बढ़ाते तो वॉल्यूम बढ़ती है, प्रेशर बढ़ाते तो वॉल्यूम कम हो जाती है, तो चेंज होती है ना. तो लेट्स डू दिस नाउ. We have got the correct volume. Now we can start Avogadro law. Mass of substance X is equals to question mark. Volume at STP is what? 8.38 liters. This has come from the question. This has come from the question. Same will write from the formula. बताइए mass of substance क्या होगा? फॉर्मूला से. फॉर्मूला में क्या होता है मास? क्वेश्चन मार्क लगा होता है उस पे. शुड आई राइट इट? ऐसा होता था देखिए फॉर्मूला. मोल 1 ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्वेश्चन मार्क. सबका अलग अलग होता है. ऑक्सीजन का अलग है, सबका अलग है. ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बाद क्या आता है? वॉल्यूम. वॉल्यूम कितना होता है? 22.4 लीटर्स. वेरी गुड. और पार्टिकल्स एवोगाड्रो नंबर 6.023 इंटू 10 जो भी है मॉलिक्यूल एटम कुछ भी हो. मास ऑफ सब्सटेंस हमें दिया है क्वेश्चन में. मॉलिक्यूलर मास तो कितने ग्राम मॉलिक्यूलर मास इधर? 60. देखिए ये लिखा हुआ है द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एक्स इज 60. तो मॉलिक्यूलर वेट तो फॉर्मूला में लिखते हैं. क्लियर बेटा? मॉलिक्यूलर वेट फॉर्मूला में लिख दिया 60. सो फॉर्मूला से आ गया 60 एंड वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस कितना आया? 22.4 लीटर. वो ही कहानी है. दो चीजें क्वेश्चन से, दो चीजें फॉर्मूला से. अब सेंटेंस बनाइए. सेंटेंस किधर से बनेगा? जहां पे दोनों गिवन है. क्या है दोनों? कहाँ पे दोनों गिवन है बताइए? क्वेश्चन में या फॉर्मूला में? फॉर्मूला में गिवन है. अब बनाएंगे ऐसे कि अननोन बाद में आए. आई एम गोइंग टू गिव यू एन इजी मेथड आल्सो फॉर दिस टुडे. चलिए आज ही कर लेते हैं. वो रेशियो वाला मेथड होता है, क्योंकि अब हम समझ गए हैं पूरा अवोगाड्रो लॉ, सो वी कैन यूज दैट मेथड. पहले भी नॉर्मल मेथड से करते हैं. हम बोलेंगे 22.4 लीटर्स ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 60 ग्राम्स. सो 1 लीटर ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 60 ग्राम अपॉन 22.4. And we have to find for 8.38 liters of X will be how much? 60 upon 22.4 into 8.38 liters. बेटा this calculation you'll do on your own. ये हटाएंगे 100 आएगा. इसका एक बटा 100 आएगा. कट गया देखिए. Clear? Now you can cut by 2, 3 and then answer will come. And the weight will come out to be 22.45. Easy method देखते हैं चलिए. And most of the teachers will accept this method, okay? Not most, all the teachers will accept this method. And same ratio proportion method can be used in LUSAC as well. क्या होता है मेथड देखिए. जो क्वेश्चन से आ रहा है ना उसको लिख दीजिए. जो अननोन है उसको x मान लेते हैं. x अपॉन 8.38 इज इक्वल्स टू 60 अपॉन 22.4 लीटर्स. देखिए समझ आया आपको क्या हुआ? इतनी बड़ी लैंग्वेज रखने की जरूरत ही नहीं है. ये शॉर्टकट है एवोगाड्रो का. अब जो भी क्वेश्चन करेंगे वो शॉर्टकट से करेंगे, बिकॉज नाउ वी हैव अंडरस्टूड व्हाट इज एवोगाड्रो. देखिए तो मैच करिए इससे. रेशियो मेथड क्लियर है. जो क्वेश्चन से दो चीजें उनका रेशियो, जो फॉर्मूला से दो चीजें आई है उनके रेशियो के इक्वल होगा, बट सेम तरीके से रेशियो लेना. ठीक है बेटा? क्लियर? चलिए तो एक्स आ जाएगा 22.45. चलिए अगले दो क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9.
और ग्राम एटम्स और ग्राम मॉलिक्यूल्स को फिर से समझते हैं एक बार। चलिए, I expect this from you that now you know what is Avogadro's law. He said equal volume of all gases contain equal number of particles. And then he gave at same particles, molecules, atoms, whatever. And then under the similar condition of temperature and pressure, क्योंकि वॉल्यूम तो तभी बन पाएगी इक्वल। फिर उन्होंने फिक्स कर दिया बेटा, पार्टिकल्स को भी फिक्स करा हुआ है फॉर्मूले में। चलिए, ऑल ऑफ यू कॉपीड, जल्दी से करिए, देन विल मूव फॉरवर्ड। उन्होंने पार्टिकल्स को भी फिक्स कर दिया, मोल को भी फिक्स कर दिया, वॉल्यूम को भी फिक्स कर दिया, और ग्राम मॉलिक्यूलर वेट भी बता दिया कितना जो भी होगा गैस का। चलिए, आज सीखते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर वेट के बारे में। तो आई एक्सपेक्ट, मिताली आपने किए थे घर पे क्वेश्चन? अगर आपने होमवर्क क्वेश्चन किए होंगे तो आज समझ आएगा, नहीं तो सब कुछ सर के ऊपर से जाने वाला है। आपको ऐसे लगेगा कि नहीं आ रहा है कुछ समझ। तो रिपीट करते हैं, मोल कितना होता है बताइए? एक। ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ये होता क्या है? वॉल्यूम कितनी होती है बताइए? फिक्स 22.4 लीटर्स या डेसीमीटर क्यूब। और पार्टिकल्स कितने होते हैं? 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल एटम जो भी है। पहले ग्राम मॉलिक्यूलर वेट समझते हैं। रिलेटिव एटॉमिक मास आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू इन लुसाक लॉ, यू कैन चेक द वीडियो अगेन। रिलेटिव एटॉमिक मास एंड रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। लेट्स सी व्हाट इज दिस ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ये जो ग्राम वाला होता है, ऐसे कैसे हम किसी भी, मान लीजिए मैं बोलता हूँ ऑक्सीजन का मास, मास नंबर 16 है, तो उसका मास ग्राम में 16 ग्राम का मतलब क्या है? ये पहले ये सीखते हैं हम। सुनिएगा ध्यान से। अगर मैं आपसे पूछता हूं रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एटम, या फिर आप बोल सकते हैं मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम, बताइए कितना होता है एक ऑक्सीजन एटम का मास? 16 AMU। बिल्कुल सही, परफेक्ट आंसर, AMU होता है। अब अगर मैं AMU को ग्राम में लिखूं, AMU का मतलब होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg या 24 ग्राम। अब आएगा ये ग्राम में। तो यहां पर अगर इसका मास लिखूं तो ये लिखना चाहिए ग्राम में। अब सीखे मिताली, कल ग्राम एटम्स, आई वाज थिंकिंग कि क्यों नहीं आ रहा होगा सर में आपको कल ग्राम एटम्स। तो दिक्कत यही है, GMM नहीं पता अभी हमें ठीक से शायद। सुनिए, ये आ जाएगा तो ग्राम एटम्स तब समझ आएगा जब मैं बोलूंगा रिलेटिव है, ये क्या हो रहा है। कल प्रॉब्लम ये हो रही थी शायद, तभी समझ नहीं आया। पहले समझिए, एक एटम का मास 16 बोलते हैं हम ऑक्सीजन का, वो 16 AMU होता है। क्या होता है? AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट मतलब 1/12 ऑफ कार्बन। उसका मतलब होता है 1.6 10⁻⁻27 kg या 24 ग्राम। तो एक ऑक्सीजन एटम का मास आपके सामने लिखा है, पक्का? बट जब एवोगाड्रो ने लॉ दिया तो उन्होंने एक एटम की बात ही नहीं करी, उन्होंने एक एवोगाड्रो नंबर दिया। उन्होंने बोला मैं बात करूंगा तो एक मोल की करूंगा बात। किसकी बात करूंगा? एक मोल। और बोला एक मोल की बात होगी, एक एक एटम की बात नहीं होगी। और एक मोल में कितने एटम्स होंगे? 023 इंटू 10⁻23 एटम्स। एटम्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ जो मास आएगा वो एक का नहीं आएगा, एक एटम का, वो 6.023 का आएगा। क्योंकि एक मोल लिख लेना, क्लियर? एक मोल आएगा नहीं बेटा अगर एवोगाड्रो नहीं आए। सबको आ गया एवोगाड्रो तो? हाँ? एक मोल का मतलब एक क्वांटिटी, वन मोल, उसका नंबर होता है 6.023 10⁻23। तो अगर मैं आपसे पूछूं मास ऑफ वन मोल या फिर 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स, आप कहेंगे सर 16 में मल्टीप्लाई करा दीजिए 1.66, 10⁻⁻24 से मल्टीप्लाई कराइए 6.023 इंटू 10⁻23। और इस पूरे को जब हम मल्टीप्लाई कराते हैं, ग्राम में है ये, दिस इज इन ग्राम्स, क्योंकि ऑनलाइन वाले बच्चों को ग्राम नहीं दिखा, ये ग्राम में आएगा बेटा। इस सर्कल वाली वैल्यू को जब हम मल्टीप्लाई कराते हैं तो 1 आता है आंसर। कैलकुलेटर में करा के देख लीजिएगा, चेक करते। 1.66 10⁻⁻24 को 6.023, वो तो कटी गई, दोनों पावर तो कट जाएंगी, -1 ही बचेगा। तो 1.66 इंटू 6 इंटू अपॉन 1/10, तो आंसर कितना आएगा? 1। तो ये आ गया 16 ग्राम्स। अब सुनिए ग्राम मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है।
रिलेटिव एटॉमिक मास या रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास तो उसका एएमयू का मास होता है, असली मास। पर जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है वो एक मोल का मास होता है। किसका मास होता है? एक मोल का मतलब कितने एटम्स का? 6.023 इंटू 10⁻23। इसीलिए हम उससे लिख देते हैं 16 ग्राम। अब सुनिएगा, ये तो एटम की बात हुई है। किसकी बात हुई है? ऑक्सीजन के एटम की। अभी यहीं से बनेगा ग्राम एटम। पहले इसको समझिए। एटम का मतलब समझ आया आपको? अगर मैं एक मोल बोल रहा हूं तो एक मोल में कितने एटम्स हैं? ठीक है। और वो कितने ग्राम का एक मोल? 16 ग्राम का। ऑक्सीजन का एटम का मोल 16 ग्राम का है। इसको इधर शिफ्ट कर दिया। अब आते हैं मॉलिक्यूल के बारे में। मॉलिक्यूल देखिएगा, मैं बोलूंगा मास ऑफ, ध्यान से देखना बेटा, बहुत सीरियस डिस्कशन है। मास ऑफ वन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मतलब O2। मॉलिक्यूल का मास क्या होगा बताइए? एक मॉलिक्यूल का मास 16 × 2 32 व्हाट? एम ना, एएमयू। एएमयू का एक एटम का। बट अगर हम एवोगाड्रो के फॉर्मूले में लिखना चाहते हैं उसका मास, तो एवोगाड्रो ने एक एटम की बात तो कभी करी नहीं। एवोगाड्रो ने हमेशा एक मोल की बात करी। और एक मोल में कितने होंगे? मास ऑफ कितना? 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो ये 32 एएमयू को ग्राम में करेंगे तो 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम्स। और क्योंकि ये 6.023 पार्टिकल्स का है, 6.023 इंटू 10⁻23। फिर पे उतारे, इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? वन आंसर, 1 ग्राम। तो एक मोल का वजन हो गया कितना? 32 ग्राम्स। अगर मैं बोलूं ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का क्या वजन, आप बोलोगे सर 32 ग्राम। तो बोलो बेटा 32 ग्राम्स क्या एक का वजन है? आप बोलेंगे यस सर, एक मोल का वजन है। किसका वजन है? 1 मोल का जो वेट होता है उसी को हम बोलते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। समझ गया आप? इतना क्लियर है? ग्राम एटॉमिक वेट मतलब एक मोल एटम्स का। एक मोल एटम लाए अगर हम, एक डजन बनाना लाए, उसका वेट डजन होता है ना। एक एटम का नहीं है वो, एक मोल का है वो। एक एटम का एएमयू में होगा, बिल्कुल सही। और वो यहाँ पे पुट कर नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे जो पूरी चीजें लिखी हुई है वो एक मोल की लिखी है। हाँ, एक मोल का मतलब है 6.023 10⁻23 एटम्स का, तो आएगा 16। और अगर मॉलिक्यूल हुआ, मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल, अगर मैं एक डजन मैंगो लाऊं तो 12 होंगे। एक डजन बनाना लाऊं वो भी 12 होंगे। एक डजन चॉकलेट लाऊं वो भी 12 होंगी। वैसे एक मोल एटम में 6.023 10⁻23 एटम्स होंगे। और एक मोल मॉलिक्यूल में 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे। एवोगाड्रो किया है तो समझ आ रहा होगा बहुत अच्छे से, नहीं तो गड़बड़ लग रही होगी आपको। और ये रिकॉर्ड करके डालेंगे, कल वाला भी आज वाला भी तो रिलेट कर पाएंगे। बताइए तक क्लियर है? अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगर मैं बोला 32 ग्राम्स, तो ये एक एटम का नहीं है, एक मोल का वजन है। एक मोल का मतलब 6.023 इंटू 10⁻23 का। समझ गए ना? अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 पर। कैलकुलेट द ग्राम एटम्स। कर रहा है बिल्कुल सही। प्रेजेंट इन, पर इसको समझेंगे जरा, देखते हैं आज समझ आता है कि नहीं। 8 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। अब ये ग्राम एटम को अंडरलाइन कर दीजिएगा और लिखेगा मोल्स ऑफ एटम्स। ये मतलब समझिए इसका। देखिए ग्राम ऑफ एटम्स और ग्राम एटम्स अलग अलग है। ग्राम ऑफ एटम्स मतलब आप 8 ग्राम एटम उठा लें, बट ग्राम एटम का मतलब है मोल ऑफ एटम्स। व्हाट ऑफ एटम्स? मोल। अब ध्यान से सुनिएगा, मुझे बताइए ऑक्सीजन के एटम में एक मोल कितने ग्राम का होगा? ऑक्सीजन के एटम का 16 ग्राम का। तो 8 ग्राम में कितने मोल होंगे? ये क्वेश्चन है।
तो अगर मैं बोल रहा हूँ ग्राम एटम्स, तो इसका मैं पूछ रहा हूँ कि मोल, अभी किया था हमने, ऑक्सीजन 16 का होता है, 16 ग्राम का मतलब है एक मोल, मतलब कितने पार्टिकल्स, 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल्स। तो ग्राम एटम्स का मतलब बोलिए आप मोल ऑफ एटम्स, क्या बोलिए। तो 16 ग्राम का इसका एक मोल होता है, तो 8 ग्राम में कितने मोल जाएंगे, 0.5, आधे ही तो चढ़ेगा। तो जो ग्राम एटम्स होते हैं, सुनेगा ध्यान से, मतलब मोल ऑफ एटम्स, एक मोल का कितना वजन होता है, 16, मतलब उसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास अपॉन, उल्टा कर दिया मैंने, ये नीचे आएगा, वेट ऑफ सब्सटेंस या मास ऑफ सब्सटेंस, मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस। बट क्योंकि एटम्स है तो क्या लगाएंगे, ग्राम एटॉमिक मास, क्योंकि हम ग्राम एटम्स निकाल रहे हैं। तो एक एटम का वजन कितना होता है एक मोल में, 16, और हमारे पास कितना है 18, डिवाइड करा दीजिए, कितना आएगा 0.5 एटम्स, बस इसका आधा मोल है। इसका मतलब जब हम 8 ग्राम आप ऑक्सीजन उठा के लाए हैं, तो एक मोल नहीं लाए आप, कितना लाए हैं, आधा मोल। तो बस यही है। अब ये आधा, समझ गए ना आप आधा कैसे, ये हाफ मोल है, हाफ मोल, रिलेटिव हाफ, ठीक है। दूसरा सुनिए, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। यस बेटा, आप क्या बोल रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही, आगे भी आप ले जा सकते हैं इसे। अब अगर ये आधा मोल है इसमें, तो इसका मतलब पार्टिकल्स भी आधे हो जाएंगे, और इसकी वॉल्यूम भी क्या हो जाएगी, आधी। सब कुछ आधा 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 हो जाएगा, समझ गए ना। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, वहां पे ग्राम मॉलिक्यूल पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करा देंगे। क्वेश्चन है, कैलकुलेट द ग्राम molecule present in 45 grams of water। टोटल वाटर कितना लाए आप, 45 ग्राम्स पानी है, एक मोल कितना भारी होगा पानी का, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास के बराबर, क्या होगा बताइए इसका रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, कितना होगा, H2O होता है ना वाटर, तो H2 + O, बेटा ये सबको क्लियर है, ऑफ H2O। ग्राम मॉलिक्यूल देखिए क्या होता है बेटा, ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब है मास ऑफ सब्सटेंस, मास ऑफ सब्सटेंस, मास इन ग्राम्स ऑफ सब्सटेंस, अपॉन क्या लिख देंगे नीचे, ग्राम रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। कितना आएगा बेटा है, कितना लाया 45 ग्राम्स, और एक मोल कितने ग्राम का होता है, 18 ग्राम का, 18 ग्राम मतलब एक मोल ला रहे हैं, तो कितने मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स आए होंगे, 2.5 ग्राम्स, समझ गया, 2.5 ग्राम्स। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू, इज दैट क्लियर। So that's it for this topic. One more lesson left, and then we are done with this.